Sir, my question is to all of y'all. Aren't y'all missing Manisha Koirala and Jackie Shroff besides y'all? I think we're missing them as much as they're missing us, because I know this film was inspired, and my coming together of this film's launch today was made because Manisha and Jackie both wanted to be here on the 31st of July. It is them that they said to us that all get together. So we all got together to keep 31st. Last minute, I can't tell you how bad Manisha is feeling, and she's been on the line with me. And at 4 o'clock in the morning also, she sent to me a message saying how terrible she's feeling. The flight she's reaching in the evening. मैं तो कहता हूँ यही प्यार से मुझे मालूम है वो यहीं हैं, हमारे साथ हैं and रहेंगे. And what about Jackie ji? Jackie ji had told me that he would be a little difficult to come up before 4 o'clock. So I said, I have to get the show on. So I'm doing the same thing. He's there and he'll be available. जब भी आप बोलेंगे वो इस फिल्म के बारे में दिल से जान से प्रमोट करेंगे और आपके पास जब भी आपको वक्त मिलेगा. In fact, Manisha ji has said that tomorrow anybody wants to meet her and have an interview. मैं ऐड करना चाहता हूँ इस पे. चूँकि मैं फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा. Jackie is my dear friend. Manisha is my very dear friend. दोनों ने मुझे मैसेज भेजा. जैकी ने बोला प्लीज़ apologize on my behalf to everybody, bro. Please handle it. There's reasons that I'm not able to reach here. And please tell everybody that after this, I will be there till the release everywhere. तो मुझे उसने पर्सन लिखा था, उसने नहीं सोचा था कि मैं पढ़ूंगा. मैंने इसे शब्द यहाँ करके पढ़ा. This is the feeling that he conveyed कि I will be there. Please, my brother, handle it for me. Explain it to them. मनीषा ने भी मुझे भेजा है मैसेज और कॉल भी किया था रात को कि जिस जगह वो शूटिंग कर रही है बैंकॉक में, एंड शी वाज गोइंग टू लैंड लास्ट नाइट, एंड इसी हिसाब से ये 12 बजे का फंक्शन रखा गया था. बहुत तैयारी की थी, बहुत कुछ सोचा गया था. दिव्या ने थोड़ा धोखा दिया. हमने कहा पुराने टाइम के कपड़े पहन कर आएंगे हम, और तो बहुत सारी तैयारी की थी. पर वो मनीषा ने भी मुझे इसी तरह का मैसेज भेजा. एंड आई बिलीव शी इज़ गोइंग टू बी स्पीकिंग टू यू ऑन स्काइप. इज़ दैट करेक्ट? ओके. तो ऐसा नहीं है कि कई बार होता है, हमने भी किया है, कई फिल्मों को आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, यू अबंडन कर देते हैं फिल्म को. ऐसा नहीं है, क्योंकि ना मैं फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ ना मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ. मैं एक कलाकार हूँ और वो दोनों मेरे मित्र हैं. उन दोनों ने मुझे पर्सनली बोला है कि आप सबको मैं एक्सप्लेन कर दूँ और माफ़ी मांग लूँ. Excuse me, hi. I think he just did, right? No, I just wanted to add that we are also alongside Jackie and Manisha, missing Thomas Xavier here, who's the cinematographer of the film and who's made everyone look so wonderful. Bijon Das Gupta and Sonia Dhingra, the costume girl, and Bob Brambhat and Arya. And so I think we are here representing everyone, so you can ask us all the questions regarding the film, please. Thank you. Can I ask the question now? Yeah. My question is for Mr. Grover. First of all, it's been great being face to face with the bad man of India. My question is, normally, you know, we've associated you running after the heroine, chasing her, locking her in the minivan like in Vishwatma. Now you're actually romancing someone. So how did that feel? Well, on screen. रियल लाइफ में भी वैसी ही फीलिंग है. बहुत प्यार है मुझे मनीषा कोइराला से, बहुत प्यार है, दोस्त है मेरी. मैं कलाकार हूँ और I was just telling somebody yesterday that people are frightened to be typecast. I in fact created the typecast. I also said it is weaker actors who are scared of being typecast. If you are a good actor, strong actor, hard-working actor, and gutsy and courageous, then nothing can stop you when the time is right. And I've proven it. मैं इसके पीछे ऐड कर देता हूँ 2-3 लाइनें. I am from commerce background. I'm from Shriram College of Commerce. When I came here to act in movies after having done my formal training along with Anil Kapoor and Mazhar Khan and various people, I deciphered and analyzed the film business and how can you be a big brand. And I understood that you must have a recall value, you must have a recognition value. So I created this bad man, villain persona myself, and I worked very hard for it.
And I knew when the time is right, I will be able to break it with no difficulty at all because I'm hardworking and I'm talented and I'm gutsy and courageous. So, you know, I mean, for example, let's say Dimple ji recommended me for this film. Dimple ji said, Gulshan Grover should be that lover. And it's a lover. I mean, when you see the film, I'm sorry, मैं आधा सीन सुना देता हूँ. एक शॉट है ब्लैक एंड वाइट का कि मनीषा कोइराला जो फिल्म की हीरोइन है वो बारिश में फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूट हुआ है, शायद इसकी कोई पीछे हिस्ट्री होगी, ये बताएंगे कि वो बारिश में छाता लेकर हीरो को रोमांटिक डायलॉग बोल रही हैं एंड सडनली दिस डॉक्टर दैट इज मी वॉक्स इन, छाता इधर चला जाता है, वो उधर देखने लगती है उस डॉक्टर की तरफ से और डायलॉग इधर बोल रही है, वो हीरो बेचारा भीग रहा है, उसकी विग गिर रही है, यू नो, मतलब भीग रहा है, एंड हर अटेंशन इज ड्रॉन टू माई कैरेक्टर. नाउ to have somebody like Gulshan Grover play this part, where the heroine is giving a shot, a romantic shot to a heroine, gets distracted by the entry of a doctor, of a young person, whoever he is, she doesn't know, and she gets so attracted that she messes up the shot, and she's continuously looking at it, and of course a voiceover comes. दोनों तरफ से प्यार, पहली बार एक दूसरे को जब हमने देखा, तो ये मेरे लिए अनयूजुअल रोल है, लेकिन अलग अलग कलाकार, अलग अलग डायरेक्टर्स का देखने का नज़रिया है. डिम्पल कपाड़िया ने मुझे इस रोल में देखा, उसी तरह से सारिका ने मुझे इस रोल में नहीं देखा, और वन ऑफ द थिंग्स शी सजेस्टेड गुलशन ग्रोवर को निकाल दो. तो उसी तरह से मनीषा कोइराला से दिस इज द बेस्ट कास्टिंग बिकॉज गुलशन एंड आई आर सो डियर टू ईच अदर दैट देयर इज अ नेचुरल affection for each other. So I'm saying ki it's relative, and also I am absolutely sure when you come out seeing this film, पहली स्क्रीनिंग हुई थी तो मुझे याद है इनके एक एसोसिएट हैं, उन्होंने और हमारे दोस्त बॉब भट्ट ने और बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके ये बोला था, माय गॉड यार, योर एक्टिंग इज़ रियली शॉकिंग एंड रियली रियली फैंटास्टिक. ये मैं कह रहा हूँ बगैर देखे फिल्म. इनके दो दोस्त, मेरा दोस्त बॉब भट्ट, उसने बोला, डायरेक्टर ने अभी तक नहीं बोला, इसलिए मेरे शॉट कम डाले इसने, बाहर मिलना तो मुझे. थैंक यू सर. यही तो कहानी है. There are too many twists and turns. जो आप कहानी देखेंगे तो उसे पता लगेगा कि कहाँ से कहाँ पहुँचता है, कौन लवर है कौन लवर नहीं है. रोहित जी, देखिए, ये तो हर मुखौटे के पीछे कई मुखौटे होते हैं. मैंने कहा था आपको, कोई भी देख ले, इंस्पिरेशंस भी होती हैं और कुछ कहानियों में दिलचस्पी लाने के लिए एक लुक दिया जाता है. पर फैक्ट रिमेन्स के जो एक्टर्स थे उस वक्त के, उनमें एक स्टाइलाइजेशन था, उनमें एक तहजीब थी जो अलग है आज के ज़माने से. सो टू कैप्चर दैट, वेलकम ज्योति. सो आई हैड टू वर्क ऑन दैट. तो इसलिए सब हैं, कौन कौन नहीं है, आप शायद इनके सबके एक्टर्स में छुपे हुए दूसरे एक्टर्स दिख जाए आपको. हाँ रोहित जी, हेलो, इधर लेफ्ट. हेलो. हाँ, अभी प्रोमो में हमने देखा एक डायलॉग है कि अगर ज़िंदगी ये दोबारा मुझे मौका मिले जीने का तो क्या मैं इसी तरह से जीऊँगी. तो ये ऐसी ही ज़िंदगी मनीषा जी की हकीकत में भी रही है, तो क्या कहीं पब्लिक की सहानुभूति के लिए ये डाले हैं? ज़िंदगी तो शायद उनकी बहुत ही अच्छी रही और रहती रहेगी और बहुत सालों, डेकेड्स तक रहेगी. इतनी खूबसूरती के साथ वो इंसान है. मैं आपको बता दूँ एक और बात कि जो हर वक्त इस स्टोरी में जो आप देखेंगे, इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं बोला उन्होंने. ये तो आपका दरिया है, जिस तरह से प्रमोशन किया गया है, किस तरह से क्या क्या होता है उनके साथ इस फिल्म में, जो कहानी में होता है, जो प्यार है, जो ज़िंदगी में जो टेंशन्स हैं, जो ड्रामा है, जो एलिमेंट्स हैं, आप उस खूबसूरती और उस टेंशन सबको देख के आप अपने आप को देखिए. आपकी ज़िंदगी में भी टेंशन, खूबसूरती और सब कुछ हो सकता है. कभी कभी आप सोचेंगे, क्या मुझे ज़िंदगी फिर मिले, क्या मैं ऐसे ही जीना चाहूँगा. ये दैट इज़ अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. इस फिल्म में, इस कहानी में, इस कैरेक्टर को जो ये लाइन बोली जाती है, शायद फिल्म में, यहाँ प्रोमो में एंड में है, फिर फिल्म में पहले शुरू में आती है, पर हम ये ट्विस्ट एंड टर्न्स को इसी तरह से दिखाते हैं. तो ये बहुत ही डिफरेंट अंदाज है फिल्म का. अगर
आप कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर का मतलब ये हुआ कि जो इनसाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग जो हैं, हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और हमारे क्या छुपी हुई फ्रस्ट्रेशंस हैं, जेलसीज हैं, प्यार हैं, नीड्स एंड डिज़ायर्स हैं, उसका एक कभी कभी खात्मा होता है या शुरुआत होती है। इस पे बेस है चेहरे। ये चेहरा कभी बदल नहीं सकता, पर चेहरे पे चेहरा हो सकता है। रोहित जी, अच्छा, जी बोलिए। बिल्कुल सही है आपका कहना कि इस फिल्म For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.